session? Shashank, Yes, hello sir. yes, what we Yes, have sir. completed in last session. Multi-level inverters. Okay. And there's one more thing I want to know that you have given your name in presentation schedule. Yes, sir. Okay. And what about the project report? Submitted. Submitted? Yes, sir. Okay, okay. Till now, who have not submitted the project report and not given the name? Me? No, no, no. I'm asking to all of you that who have not means given the name and who have not completed that project report. So as I can see here, Abhishek, Ajay, Kuldeep, who is this KBRR projects? Sir, maybe Venkateshwar, sir. He can write his name, no? Okay, fine. So Vivek, Suranjan, Sashank, Ramareddy, Kuldeep, Ajay. Is Ankit Manji. Hello? So it's Aniket Kai. Okay, okay. So why you have not submitted your report and you Yes, have not sir. made any? Yes. I will submit my report in next 1 or 2 hours. It's Okay. completed, but I have something work to do in it. Okay. I'll Fine. complete till today and I'll submit it. Okay. Okay, fine. So in today class, whatever we have covered in last session, I think we have covered 5 projects. Okay. And so as some of having some problem that sir, this is a July batch or September, so we have to complete this by September or October. So that is why I'm taking this MATLAB classes. Okay. To completion of your project. So I think 5 we have completed, so 6 are remaining. So we will complete one by one. Okay. And from the next Wednesday, we will have the same class like we were having before also. Okay, so in the first session, in the first half, that we will cover this presentation and the project report discussion, and in the second half, we will cover the MATLAB. Okay, so the Wednesday class will be regular for all the sessions, just like that, till we will not complete the MATLAB projects and all the reports. Clear? And then in the next week, coming Friday, we have this MATLAB class. Definitely, we will not have in Friday. That is what I said, that whatever we are doing today, that we will combine with the Wednesday class. In the first half, we will discuss with the project report and the presentation. And in the second half, we will discuss about the projects, the upcoming projects. Sir, So class will be of 2 hours. it will be, it can be 2 hour, it can be 3 hour also. It depends that how we are going to do these things, because it will be like 2 to 4, I guess, or 1 to 3. Okay, sir. Yes. So, any classes there in between? So, or you have some work so that I can change the timing also. Yes, Sahan. No, sir, I am comfortable. Okay. I don't think that you are comfortable. You are asking about the hours, 1 hour or Yeah. 2 hours. Nee, I was just asking because, like, if we had 2 hours, then it would be difficult to complete both of the sessions, like presentation and MATLAB together. Why it will be difficult? Because in presentation, lot of time
is like taken. It will take only for one presentation. It is we are taking only 10 to 15 minutes. 10 minutes for the discussion and I think a presentation or maybe 15 minutes. Okay. Okay. So and in 1 week we are having 3 presentation. So how much time it will be? Okay, sir. If it's a 15 minutes presentation, then how much time it will take? 45 minutes 45 minutes. Okay. 15 minutes for each this presentation. discussion and the question answer. How Another much time? 45. 1 hour. Yes, sir. Okay. And for the MATLAB, we are giving 1.5 hour or maybe 1 hour. So it's a 2 hour class. If I'll extend, if I will think that this MATLAB project is a long project, then I will take 3 hour class or it will be 2 hour class. Okay. 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 So on today class, we will do this MATLAB project and in that we will see that how to design a lithium ion battery pack. Okay, according to a driving cycle. Means if you are having any of the driving cycle and on that driving cycle you want to see the behavior of SOC of that battery and the total battery pack voltage and the battery current with respect to the cycle, that we will do. Okay, so we will follow the data sheet for this lithium ion battery. You can also download any of the data sheet. So you will get to know how many parameters and which parameters we are going to include in that project. So according to that, we will take all the values from that data sheet and we will design the battery pack for that particular driving cycle. Okay. So in that, you will get to know that how this battery is going to discharge with respect to uh, the driving cycle which you are choosing. Okay. So that we are going to do. Now, I will share my screen. I will explain in the manual. ये स्क्रीन अगर विजिबल हो तो मेरे को एक बार बता देना विजिबल है क्या ठीक है तो what is our aim actually this modeling of battery pack okay so in that battery in that model what are the objectives that we will complete is that we will configure the battery as per a lithium ion battery data sheet okay explain the parameters which we have taken in this okay we will simulate the model and will see the results like SOC, voltage, and the currents of that battery pack. Okay. And this task, I will give it to you that because I will explain for this 4S3P model, but this 4S3P model is just like that you are having 4 series and 3 parallel path to design this battery pack. But you have to design for 3S4P so that you can means comment on the SOC that which combination is good for this we can say that what is the difference between this 4S and 3P combination with the same driving cycle. Okay, so just a minute. Okay, so these are some objectives that we will cover in this project. So
in the battery configuration, if you will see the data sheet of that battery pack, okay, I have already given this data sheet. You can also follow the link, whatever I have provided here. Okay, like this one is your link. Okay. Okay, I think this is not in Drive, so that is why this problem is happening. Okay, fine. I will update. So you will easily get the file from the Drive itself. Okay. But I already, given this data sheet, and you can also download this lithium ion data sheets from your website, any of the website, you will get this. Okay, so in this, the all the configuration of that battery cell is given, like the nominal capacity is 2600 mAh. Okay, nominal voltage it is giving, charge current, discharge current, everything is giving in this. Okay, so by following this, we have to make the battery pack. Okay, so as you know that this symbol, it might be changed in your MATLAB, or because in my MATLAB it is this symbol is changed. But if you are having some of the previous version, तो उसमें क्या है कि ये बैटरी का आपको symbol मिलेगा. So it doesn't matter, but you just have to follow the battery. That's it. Okay. So in this battery block, which type of battery you want? Select that type of battery. You want lithium ion, so let's select the lithium ion. Okay, so whatever the data sheet you are using, so on that data sheet, write the parameters which you have taken. Okay, like nominal voltage you can take, whatever the data sheet is given, rated capacity that you can take. And here that I have taken the initial charge of 100%. So you can take is 80% or 90%. So standard is 80%, that you can take the 80%. But for a better understanding, I have taken the 100. But in practical case, it will not be 100. Correct? So see the thing here, you have this parameters. Here you are having discharge. So the parameters, when you will click, feed all the parameters here, and after that click on discharge. So after clicking on the discharge, you will get these things. Okay, so here you बैटरी can रिस्पॉन्स define. टाइम क्या है? Hello. बैटरी रिस्पॉन्स टाइम Yeah, this battery response time, you can say that it is take here we have mentioned 30 second. Okay, you can change it to 10 second or 5 second. It depends that how you are taking into account the simulation of the battery. Okay, so in standard we always select as 30 seconds. It is not, if you select 10 second, it will not affect the performance or anything. It's just a simulation time period part. We can say that for the continuous or the discrete, like we do the in solver, continuous solver or discrete solvers. If you will take the discrete solver, it will solve fastly. Okay. So this is not taking place in your calculation or in your response. Okay. You can take 10, 5, whatever you want. Okay. So just feed all the parameters here, like what are the parameters we want to feed in this. Okay, I will tell you that how to do that in MATLAB also. First understand the manual, and we will design the manual, design the model of this. Okay, fine. So this is just when you will just take the battery model or single battery pack on MATLAB. So there is some option is given already. Plot, I think plot characteristic, something will be there. So when you will do that, so it will give definitely it will give this.
This characteristics you will get from that battery pack block available in MATLAB. So if you will click on that, you will plot these things. So this will give like this. It is representing the C rate versus voltage versus discharge capacity. So if you will see here, the charge current is 1.3 ampere to 1.3 ampere, and the voltage is 4.2 volt at 25 degree. And the discharge, if you will see here, so it's a variable current. Okay, means it depends on the discharging rate that you are taking 0.2 C, 0.5 means 1 or 2 or 3. So that is why this continuously this characteristic is changing according to the discharge rate. Okay. This one हेलो is सर also same thing. हेलो सर Yes, सर yes. थोड़ा ऊपर करें ना वो ग्राफ पे हाँ, सर अगर हम थ्री थ्री चार्ज रेट लेंगे सर तो जल्दी डिस्चार्ज होंगे क्या बैटरी सर हाँ, बिल्कुल ओके और अगर हम 0.2 ये लेंगे चार्ज रेट तो थोड़ा लेट होंगी बिल्कुल। ये देखो, ये 0.2 है, ये 0.5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ओके, बट फर्क क्या हो रहा है कि अभी देखो, अगर जितना ज्यादा अगर डिस्चार्ज रेट है, ठीक है, तो उतना ही क्या है, उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी कम होगी। अगर आप कम डिस्चार्ज रेट ले रहे हैं, तो उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी अगर देखोगे, जैसे 0.2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ 100% एसओसी तक वो डिस्चार्ज होने का है। लेकिन अगर आप सडन डिस्चार्ज करते हो तो कम्प्लीटली 100% डिस्चार्ज नहीं होगी बैटरी। ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पे अगर आप वोल्टेज अगर देखोगे, तो इसमें नॉमिनल वोल्टेज जो आ रहा है इसका, वो है 4.2 वोल्ट। हाँ, अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं 0.2 वोल्ट से, ठीक है। बट व्हेन यू इंक्रीज द सी रेट, सो इफ यू विल सी हियर, सो द दिस वोल्टेज इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इज 4.2, it's 4, is 3.8, is 3.6. Okay, so this discharge profile basically according to the voltage which is given in the data sheet. ओके सर Okay, this one is the same thing. So just look at this model and understand that. Okay, so how we have taken this model. In this model, what I told you that according to the drive cycle, why this model is important, can anyone tell me? Why this model is important? सर बैटरी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए चाहिए। ठीक है, बैटरी कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए चाहिए, सही है। ओके, एंड सर ड्राइव साइकिल पर का भी असर पड़ता है बैटरी पैक के ऊपर, तो उसको बेसिकली हम ये मॉडल डिजाइन करने का एक पर्पस मैं आपको बता देता हूँ क्यों है ये। कि जब आप मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल कैलकुलेशन कर रहे हो, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन बनाया, आपने कैलकुलेट कर ली कि बैटरी की कैपेसिटी मुझे कितनी चाहिए, कुछ चाहिए मुझको, ठीक है, एक्स एम्पियर आर की कैपेसिटी चाहिए मुझे, ठीक है। उस एक्स एम्पियर आर की कैपेसिटी की बैटरी को आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, क्योंकि आप क्या है, आप तो डायरेक्टली पावर ट्रेन जब मॉडलिंग में आपको सिखाऊंगा ना, तो उसमें ना आप तो सीधे जो कमांड देंगे, जो ड्राइव साइकिल से जो आप यहाँ पे रेफरेंस स्पीड का जो कमांड देंगे, वो तो डायरेक्टली क्या है कि व्हीकल ब्लॉक में जाता है, लॉन्गिट्यूडनल व्हीकल ब्लॉक। ओके, तो उसमें स्पीड जाती है, बट बैटरी से चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये सारी चीज क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग होती है, ड्राइविंग साइकिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप बैटरी पैक की मॉडलिंग करो, और बैटरी पैक की मॉडलिंग को उसके ड्राइविंग साइकिल जो आप यूज करने वाले हो अपनी पावर ट्रेन, आप उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस उस ड्राइविंग साइकिल पे चेक करो कि कितनी पीक करंट होगी, कितनी जो मीन करंट कितनी आ रही है आपकी, ठीक है, और वो ड्राइविंग साइकिल को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ये सारी चीज आप बैटरी पैक को कंफर्म कर सकते हो आप पावर ट्रेन की डिजाइनिंग के टाइम पे पहले। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो आपका बैटरी पैक है, आप कंप्लीटली देख पाओगे कि इस ड्राइविंग साइकिल के अकॉर्डिंग जो आपने बैटरी पैक मॉडल बनाया है, ठीक है, वो किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है और कितने टाइम में डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका बैटरी का जो डिस्चार्ज करंट है वो कितना ज्यादा है या कितना कम है, या क्या करंट है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, या पर्टिकुलर रेंज पे जब आपने व्हीकल एक्सेलरेट किया है, जब आपने व्हीकल डी एक्सेलरेट किया है, तब बैटरी पैक के एसओसी पे क्या क्या मीन्स उसके बैटरी पैक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके करंट या वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। समझ में आया ये? यस सर। तो ये एक बेसिकली जो है
इसमें सर इंपॉर्टेंट सर चीज। यस। सर वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिज़ाइन किया है वो बताओ ना थोड़ा सर, वो 4S 3P वाला। हाँ सर, 3P हाँ, 4S। 4S 3P वाला कॉन्फ़िगरेशन ऐसे डिसाइड किया है कि जो वो मैंने एक रैंडम, मान लो जैसे मैंने आपको बोला ना, आप 3S 4P पे डिसाइड करो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई पर्टिकुलर केस के लिए लिया है कि तुम्हारा जो है वो बैटरी का वोल्टेज इतना होना चाहिए, जब आप ऐसा होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम बैटरी एक्चुअल में अगर बैटरी के लिए लेंगे ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 20 AH की बैटरी डिजाइन करनी है, लिथियम आयन, ठीक है, जिसका बैटरी वोल्टेज होना चाहिए 200 वोल्ट, ओके, या 250 वोल्ट, और उसकी जो कैपेसिटी वो मैंने तुम्हें बता दी। तो अभी आप क्या करोगे, आप कॉम्बिनेशन निकालोगे ना, नंबर ऑफ सीरीज और नंबर ऑफ पैरेलल, है ना? यस सर। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ पैरेलल या नंबर ऑफ सीरीज आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप ये मॉडल बना सकते हो सेम। यस सर। हो सकता है कि वो आए कि 120S, या हो सकता है वो आए 13S 14S प्लस 10P, इस तरह से कुछ आए। ठीक है, तो जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आप मॉडल क्रिएट करोगे आप, और वो मॉडल क्रिएट करने के बाद आप अपनी ड्राइविंग साइकिल में उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 4S 3P लिया है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे 4S 3P मॉडल ले रहे हैं, तो जब आप 4S में कनेक्ट करोगे तो उसका वोल्टेज कितना होगा, 3.7 इंटू, बताना जरा एक बार मुझे, ये सीरीज में अगर हमने कनेक्ट किए हैं, अगर 4S मैंने किया है, कॉम्बिनेशन किया है मैंने 4S 3P, तो क्या मतलब है इसका? सर वो वोल्टेज ऐड होगा सर। 14.8। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा ना वोल्टेज, जो भी आएगा आप कैलकुलेट करके देखोगे। तो मेरा अल्टीमेटली मोटिव ये है कि आप इसको पहले कॉन्फ़िगरेशन को समझ लो, बाकी फिर आप किसी भी केस के लिए आप इसको बना सकते हो, और आप ड्राइव साइकिल से रन करा के चेक कर सकते हो कि ये वाकई में जो एसओसी है वो किस लेवल से डिक्रीज हो रहा है, आप एनालिसिस कर सकते हो। यस सर। ठीक है, सर वो ऊपर जो दो ब्लॉक है ड्राई साइकिल के बाजू में, उनके नाम क्या है सर, दिए नहीं। ये, हाँ हाँ, ये और उसके बाजू वाला। हाँ अभी हम बनाएंगे यार, बनाएंगे, मैं तुमको ये दे नहीं रहा हूँ कि नहीं तुम्हारा हो गया कंप्लीट, बनाएंगे अभी। यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ उसमें आप देखोगे क्या है क्या नहीं। देखो उससे पहले में क्या है, ये देखो सेम मॉडल है, ये बना हुआ है जो, ठीक है। यस सर। अब देखो, चलो ठीक है, ठीक है, ये दिख रही है विंडो मेरी? यस सर। यस अब सर। देखो यहाँ पे, समझो उसको पहले, ये एक्चुअल में है, ये प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है, मैं अलग से बना के दिखाऊंगा। कितने ब्लॉक चाहिए हमें, एक क्या चाहिए हमें, ड्राइव साइकिल सोर्स चाहिए, ड्राई ठीक साइकिल है। सर। ये क्या है, कंट्रोल CCS करंट। है, ठीक है, कंट्रोल करंट सोर्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये तो एक क्या फिजिकल पैरामीटर है, ड्राइव साइकिल। उसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हमको करंट के फॉर्म में। ओके, तो अब हमने यहाँ से क्या लिया, कंट्रोल करंट सोर्स ले लिया, और ये तो आपको पता है कि ये मेजरमेंट ब्लॉक है वोल्टेज का। ये आपकी क्या है, बैटरी है। अब आपको कितने, मोस्टली कितने पैरामीटर चाहिए, कितने ब्लॉक चाहिए, एक। सर, सर फिर से वो बताइए, कंट्रोल करंट सोर्स क्यों यूज किया है? करंट कंट्रोल सोर्स इसलिए यूज किया है कि ये जो सिग्नल आ रहा है, ये कैसा सिग्नल है, ये तो एक फिजिकल सिग्नल है ना, ये करंट वोल्टेज तो है नहीं, ड्राइव यस सर। साइकिल। हम्म। उसको क्या है कि एज अ करंट सिग्नल में चेंज करने के लिए हमने एक कंट्रोल करंट सोर्स का यूज किया, जो क्या करेगा, इस रेफरेंस साइकिल को, ठीक है, कन्वर्ट करेगा करंट की फॉर्म में। ओके। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो बैटरी से जो पावर लेगा वो लेगा। ओके। ठीक है, हाँ तो देखो अभी क्या चाहिए, एक साइकिल सोर्स चाहिए, एक करंट कंट्रोल सोर्स चाहिए, और मेजरमेंट चाहिए, बैटरी चाहिए, बाकी स्कोप स्कोप तो सब अलग की चीज है। ठीक है, तो अब देखो क्या चाहिए, ड्राइव साइकिल सोर्स हो गया, क्या चाहिए और, मुझे चाहिए और दूसरा कंट्रोल
कंट्रोल्ड करंट सोर्स आ गया, पश्चिम एस्केप का आ गया यार। ठीक है, मैं लाइब्रेरी से सर्च कर लेते हैं। मैंने इसलिए बताया, जब आपको ना कई बार डबल क्लिक करने पे स्क्रीन पे कभी ना आए ना अगर, तो आप बेहतर ऑप्शन है कि आप यहाँ जाओ, यहाँ से साफ सर्च करो। बस स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, अगर स्पेलिंग रॉन्ग है तो बिल्कुल भी नहीं आपको सर्च करके देगा। ठीक है, ये है, इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये भी ऐड हो गया। और मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज मेजरमेंट। वोल्टेज मेजरमेंट। ठीक है, गलत है। स्पेलिंग गलत हो गया क्या? हाँ, टी के बाद एस हो गया। अच्छा अच्छा, वोल्टेज में चलो ये तो ये डबल क्लिक पे यहाँ पे भी आ ही जाएगा। वोल्टेज मेजरमेंट, ठीक है। चलो मैं थोड़ा इसको छोटा कर ले रहा हूँ। ओके, अब तो इस सब चीजों में दिक्कत नहीं होती है, कनेक्शन करने में, इसको मूव करने में, बड़ा करने में, साइज इंक्रीज करने में, अरेंज करने में, ओ सर। है। इसके नीचे आप पता है, आप ये भी चेंज कर सकते हो, जो इसका नाम है पता है ना? यस सर। यस हाँ, सर। ठीक है। यस सर। और ये सब रोटेट करना है तो ऐसा, हाँ रोटेट कर लो। ये सारी चीजें तो क्लियर होंगी ना? यस हाँ, सर, कंट्रोल और बार सर से। आप लास्ट लेक्चर में जो बोले थे ना, हाँ, वो स्क्रीनशॉट लेने का कोई तो सॉफ्टवेयर में से, वो बता देना सर एक बार। मतलब ग्राफ का स्क्रीनशॉट कैसा बोला था मैं? कुछ बोले थे आप वो सर आप ग्राफ को फोटो ने। इंपोर्ट करने का बोले थे सॉफ्टवेयर। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्राफ, ग्राफ मतलब हाँ मैटलैब से ही कैसे अच्छे ग्राफ लेते हैं ये? अच्छा हाँ। हाँ हाँ, वो कोई डीपी मैंने वाला बोला था बोले कि थे कि मतलब कोई अच्छी वाली ओरिजिन डीपी की से। जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। हम्म। ओरिजिन सॉफ्टवेयर होता है एक, है ना, ग्राफ बनाने के लिए। आपने सुना है किसी दिन ओरिजिन या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर? No, नहीं। sir. नहीं सर। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब उसकी जरूरत है नहीं वैसे। मैं देखो आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को तो आना चाहिए कि क्या चीज है, उसकी जरूरत पड़ती है जब आप रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं ना, हम्म। या आप पीएचडी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो वहां पे ना कि आपको हाई डेफिनेशन, हाई रेजोल्यूशन के ग्राफ आपको अपने पेपर में या फिर अपनी थीसिस में डालने होते हैं। वो कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं होता कि जो हम लोग ग्राफ डाल देते हैं ना अभी डायरेक्टली हाँ हाँ। स्नैप करके या फोटो क्लिक करके, ऐसे नहीं होता है। उनको चाहिए 600 डीपीआई इमेजेस। 600 डीपीआई इमेजेस का मतलब होता है कि आप उसको कितना भी जूम कर लो, पिक्चर क्वालिटी उसकी वो क्या है, ब्लर नहीं होगी, या फिर वो पिक्चर क्वालिटी क्रैक नहीं होगी। उसका पिक्सल बहुत हाई होता है। तो वो सारी चीजें वहां पे जरूरत पड़ती हैं, बट स्टिल मैं आपको एक बार बता दूंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत ओके। सारे ऑप्शंस आते हैं अपने ग्राफ को एडिट करने के लिए पूरे। अब जैसा चाहो वैसा ग्राफ का कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड वाइट कर सकते हो, लीजेंड्स डाल सकते हो, बॉर्डर स्क्वायर लेना है या फिर टू बॉर्डर लेना है, एक्सेस में आपको नंबर्स चाहिए, या पर्टिकुलर ब्लॉक में आपको क्या है, स्पेसिफिक स्केल डिफाइन करनी है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। आपको स्केल में हेड जो फॉन्ट साइज आ रहा है वो चेंज करना है, या फिर आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, वो भी सब कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। हो। हाँ, एडिटिंग सॉफ्टवेयर। नहीं नहीं नहीं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत है। मतलब जो मोस्टली जिनको नहीं पता है मैटलैब से कैसे करते हैं, तो वो लोग मुझे लगता है कि 60-70% ऑल ओवर द इंडिया का हर जगह ओरिजिन यूज करते हैं लोग। ओके। उनको नहीं पता कि मैटलैब में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वी कैन डू एवरीथिंग, वी डोंट नीड एनी सॉफ्टवेयर टू डू दैट। तो फिर सर वो उस ऐप में ओरिजिन में से वो ग्राफ प्लॉट करते हैं बस। हाँ, ओरिजिन में ग्राफ प्लॉट करते हैं, और उसी के लिए ही तो हमको चाहिए होता है। ओरिजिन में ग्राफ प्लॉट करते हैं बस नहीं है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके बस ओके। एक मिनट यार, मैं जरा पानी पी लूं। जगन्नाथ, पानी दे दो यार, पानी दे दो। और वहां पुणे में सब सही चल रहा है? सर सही चल रहा है। सब बढ़िया सर। बारिश हो रही है बहुत। बारिश हो रही है, बारिश तो यार यहाँ भी हो रही है।
बहुत हो रही है आज बारिश। वहाँ यार थोड़ा ज्यादा है, मतलब महाराष्ट्र में तो इस टाइम वो गणेश पूजा के टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश वारिश हो गई और सब पुणे में। बट पुणे अच्छा है, मैं एक हफ्ते के लिए जब रहा तो अच्छा लगा मुझे वहाँ। आप कहाँ ज्यादा रहे हो सर? 1 वीक तो चले रहे। 1 महीना रहते ना फिर पता लगता। क्या? बारिश डेली बारिश डेली बारिश। अच्छा। नहीं, मैं बैंगलोर में भी था यार, तो बैंगलोर में भी इस टाइम सब ऐसे ही रहता है कि वहाँ मैं 1 2 साल रहा ना, तो वहाँ मोस्टली वही था कि बारिश डेली होनी ही होनी शाम में। बट मैं थोड़ा बारिश एंजॉय करता हूँ, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि बारिश बारिश बारिश, मुझे लगता है ठीक है, हो रही है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार ज्यादा एंजॉय हो जाता है। वैसे तो बैंगलोर में फ्लड आया है ना इस बार। हाँ, इस बार थोड़ा, आते ही इस बार फ्लड इससे आ गया पहले मैं यार, निकल गया। जाते ही फ्लड आ गया। वही तो। हम्म। तो तुम लोगों का डिसाइड हो गया वो ई बाइक वाला? चल रहा है अभी। यस सर, चल चल रहा रहा है। है अभी। हाँ। सो काफी डिस्कशन हुआ उसमें। हम्म यस सर। हाँ, तो अभी तो डिस्कशन में मार्केट सर्वे चल रहा है। मार्केट सर्वे तो बहुत जरूरी है यार, मार्केट सर्वे। हाँ। काफी हम लोगों की भी मीटिंग हुई थी एक साथ। हम्म तो अब यहाँ पे तो मैं ही हूँ जो काम करता है इस चीज में सारा। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी ही डिसाइड किया है करने के लिए, क्योंकि अब हमने सोचा कि पुणे में जब ऑलरेडी ई बाइक के लिए वो रेडी हैं करने के लिए, इतना हम्म सारा काम ऑलरेडी किया हुआ है कि कुछ एनालिसिस भी कर लिए, कुछ शायद कंपोनेंट्स भी, शायद मोटर और मोटर कंट्रोलर वगैरह आ गया है वो। आ गया है। हाँ। तो वही सारी चीजें जब मुझे लगा कि जब ये सब आ गया है तो यार अब उनका जैसा चल रहा है फिर चलने देते हैं। फिर हमने यहाँ पे अपना स्कूटी के डिसाइड किया। तो हाँ, तो अच्छा, ये जो ई बाइक है ना, ये वहाँ पे क्या सिनेरियो है, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है कि तुम लोग ऐसा प्रोटोटाइप बना रहे हो या फिर बिल्कुल एज अ प्रोडक्ट लॉन्च के लिए बना रहे हो? उनका तो टारगेट वैसा ही है, बट देखते हैं अभी। हम्म। नहीं, टारगेट तो ठीक है, एक फंडिंग भी एक चीज होती है। वही तो। ठीक है, कि आप 1 1.5 लाख रुपए फिर उसमें चाहिए आपको, है ना? उतना तो टारगेट लेके चल ही रहे, 1.5 लाख तो। हाँ, इतना तो मिनिमम उतना तो चाहिए। टारगेट लेके चल ही रहे। बट फिर तो बट भी सर वो अच्छा मॉडल भी नहीं बनेगा ना, अगर उतना टारगेट नहीं रखेंगे तो मॉडल भी अच्छा नहीं बनेगा। पहले डिसाइड हुआ थी कोई भी परचेज करेंगे हम्म। सेकंड वाली में, जो भी रहेगा हम्म, पहले उसके ऊपर डेमो करेंगे, वो सक्सेस जाएगा फिर पूरा मॉडल बनाएंगे। अच्छा। नहीं नहीं, आप एक काम ये कर सकते हो ना कि थोड़ा सा देखो, इसमें एनालिसिस बहुत चाहिए। एनालिसिस के हम्म साथ साथ दूसरा, अब आप देखो, असेंबल करना एक बड़ी चीज नहीं है। असेंबल हम्म करने के लिए तो क्या है, आप उसको पकड़ ला, वो जो मैकेनिक वगैरह होते हैं ना, जो काम वाम करते हम्म रहते हैं गैराज वगैरह, छोटे से गैराज में, हम्म उसको ले आओ, उसको बोलो कि भैया एक काम करो, तुम एक दिन काम से 1,000 रुपये ले लो और इसको पूरा खोल दो। हम्म या फिर हम हमारे हम्म पास ये सारे कंपोनेंट रखे हैं, इसको क्या करो, पूरा का पूरा बांध दो, बिल्कुल असेंबल कर दो उसको। हम्म अब हमारे पास कन्वर्टर ये रखा है, हम्म कंट्रोलर ये रखा है, वो कर देगा पूरा, तुम्हारी पूरी बाइक तैयार करके दे देगा तुमको क्योंकि उसको क्या हम्म करना है, उसको तो सिर्फ सब असेंबल करना है, तुम सामान ला के रख दो कि भैया ये हमारी चेचिस रखी पड़ी है, ये हमारे शॉकर पड़े हैं। आउटर कवर आप लोग लगा सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है, चलो ठीक है, बाकी सब रख दो, उसको बोलो यार ये सब कर दो। जैसे तुम लोगों का एक क्लास होता है, वो शायद गोविंद सर कराते हैं ना, वो उसमें असेंबल डिसम्बल रेट्रो करके फिटिंग पूरा वाला, रेट्रो फिटिंग रेट्रो वाला। फिटिंग वाला। हाँ 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 हाँ। हम्म वो है ना, वैसा ही करके, तो वो एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये है कि आप उस हर एक कंपोनेंट्स की, हर एक पार्ट्स की एनालिसिस करो। मैटलैब पे आप मॉडल बनाओ उसका, मॉडल बनाने के बाद उसकी एनालिसिस करो, बैटरी पैक चेक करो कितना आना चाहिए। जब ये सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी, मोटर, बैटरी, ठीक है, आपका कन्वर्टर, कंट्रोलर, इन सब की साइजिंग, बैटरी, तब जाके आप कहीं जा सकते हो डिजाइन फेज पे। आउटर डिजाइन आप रेडी कर हाँ सकते हो, आउटर डिजाइन जिसको बोलते हैं स्केचिंग। हम्म स्केचिंग उसमें उसमें आप चेंज करने की जरूरत नहीं है। होता तो उसमें भी बहुत कुछ है, मैं देखो बताऊं तुमको, उसमें एरोडायनेमिक एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है, जो आउटर कवर होता है ना बाइक का। ऐसे नहीं होता कि डिजाइन हम्म बनाने के लिए कहीं से भी कुछ भी लटका दिया बाहर, इधर उधर साइड में निकाल, उनका एक बहुत बड़ा एरोडायनेमिक एनालिसिस करना पड़ता है बाइक में। अदरवाइज पता है क्या होता है, या तो बाइक में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आएंगे, पहली चीज। दूसरा, जहां पे बैटरी 20 किलोमीटर का माइलेज दे रही थी, वो घटके हो जाएगा तुम्हारा 10 to 12। इतना फर्क पड़ता है बैटरी के डिजाइन से। वो मतलब बाइक की जो आउटर डिजाइन होती है ना, एरोडायनामिक। साइड में लगती
हाँ वो साइड में लगा देते हैं उसका लुक अच्छा करने के लिए कि कहीं भी कुछ भी चिपका दिया, वो ऐसे चिपका नहीं देते हैं। जो बाहर से जो बाइक बनती है ना, जो हम लोग मार्केट में देखते हैं कि पल्सर ने बना दी या ईथर बना दिया, रिवोल्ट की कितनी बढ़िया बाइक है, तो वो ऐसा नहीं कि शेप दे दिया कुछ भी, उसकी एरोडायनामिक एनालिसिस करनी पड़ती है। वो एरोफॉइल है ना, एरोफॉइल है ना तो। हाँ वो एरोफॉइल्स जो आप बना रहे हैं वहां से कितनी एयर पास होकर निकलेगी, ठीक है, और उससे कितना जो आपको एरोडायनामिक ड्रैग मिलेगा, या फिर इन सारी चीजों के कैलकुलेशन के बाद आप उसके शेप में चेंजेस करते हो, कंटिन्यूसली स्केच बनाते हो। स्केच बनाने के बाद फिर आप उसका क्या है, सॉलिड बॉक्स में मॉडल बनाते हो, सॉलिड बॉक्स में मॉडल बनाने के बाद फिर एक्चुअल मॉडल आप एनसिस या फिर कंसोल में बनाते हो। फिर आप उसकी एरोडायनामिक एनालिसिस करते हो, फिर से करेक्ट नहीं आता, फिर से डिजाइन चेंज करते हो। एक प्रोसेस है यार ये। ऐसा तो बाइक बनाने में पता है कितना टाइम लगता है, एक प्रॉपर बाइक बनाने में 5 इयर्स का टाइम चाहिए होता है। हाँ तभी तो लोन है, सही ठीक है, बात। तभी लॉन्च होता है मार्केट, ऐसा नहीं कि। बट हम लोगों का है कि हम एज अ रिसर्च पर्पज से काम करते हैं, तो हम लोग क्या है कि हमें एक बाइक बाइक को पूरा पहले समझना इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस तो आप बाद में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम्म। बेसिक चीजें आपको अभी भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप जब सारे कंपोनेंट डिसाइड कर लोगे ना, तो सारे कंपोनेंट डिसाइड करने के बाद ही आप चेसिस डिजाइन करते हो कि उसमें मेरे सही। और पता है कितना, 0.1 इंच भी अगर गलत हो गया ना, अगर पैकिंग, तो वो फिट नहीं बैठेगा, ना बैटरी ना कंट्रोलर ना कन्वर्टर कहीं। समझ रहे हो? वो हम्म। एक जो आप हाँ बनाओगे ना हाँ। स्पेस कहाँ पे फिट करना है, वो सारी चीजें, क्योंकि देखो वहीं पे आपका नट बोल्ट के लिए आप स्क्रू के लिए स्पेस दोगे, ठीक है, सब कुछ उसी तरीके से अरेंज करना पड़ता है। तो करते हैं। बाकी यहाँ हम लोगों का स्कूटी का है। अब ये है कि यहाँ पे क्या है कि देखते हैं, यहाँ पे भी इनिशियल अब हुई दिसंबर तक का कंप्लीट करके देना है, ये सीन है। तो काम है थोड़ा सा अभी यहाँ पे ज्यादा। चलो देखो, फिर ये एसकेप की बैटरी आ गई यार। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ब्लॉक बैटरी है ना। तो बैटरी ब्लॉक ले लेते हैं, ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब मुझको कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तुम लोगों को क्यूएसएस वाला प्रॉब्लम था ना कुछ, तो वो क्यूएसएस पे मैं एक प्रोजेक्ट मैंने डाला हुआ है, क्यूएसएस पे वो प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, मैं कराऊंगा उसको, ठीक है। ओके ओके। हम्म, ठीक है। तो अब आपको कितने कॉम्बिनेशन बनाने, 4s 3p कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आपको 4s मतलब 4 बैटरीज कनेक्ट करनी है, जो कि आपकी कनेक्ट होंगी सीरीज में। और फिर उनके आपको 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने, तो ये सीरीज में कनेक्ट हो रही है इस तरीके से, ठीक है, और ये पैरेलल में कनेक्ट हो रही है इस तरीके से, ठीक है। सीरीज कनेक्शन आपको पता है कैसे करना है, प्लस माइनस है तो माइनस पर क्या कनेक्ट होगा, प्लस से कनेक्ट होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल करंट सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब देखो
मैं सारे पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ उसके। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से मैं नेगेटिव भी कनेक्ट कर ले रहा हूँ। सोर्स है तो आप सोर्स से सोर्स को कनेक्ट कर दो। ठीक है, और क्या चाहिए? डिस्प्ले, बस बार या बस सेलेक्टर होगा। ठीक है, और क्या चाहिए? स्कोप। ठीक है, अब देखो, अब आपको जो जो पैरामीटर चाहिए यहाँ से बैटरी से, इसके एक मेजरमेंट पोर्ट से आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपको एसओसी चाहिए तो आप एसओसी सिलेक्ट कर लो, आपको करंट चाहिए तो आप करंट सिलेक्ट कर लो। ठीक है, या फिर आपको जो जो पैरामीटर्स आपको जो जो चाहिए वो आप जो है इसमें से आप ले सकते हो। हाँ जी, हाँ, ठीक है। कनेक्शन हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। ठीक है, अब आप बस सेलेक्टर में आप जो है सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, वो कनेक्ट करना पड़ेगा ना सर पहले। मेजरमेंट से कनेक्ट करता हूँ मैं इसको, किसी से भी कनेक्ट कर लो। ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ से हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, अब आपको जो जो चाहिए आप सेलेक्ट कर लो। मुझे एसओसी चाहिए, वोल्टेज, करंट, तो ये सब सेलेक्ट कर लिया, इसको कर दिया ओके। स्कोप पे डबल क्लिक करो, इसके पोर्ट पे जाओ, प्री पोर्ट कर दो। ठीक है, और
इसके मैं लेआउट भी 3 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब बाकी बचे हुए कनेक्शंस क्या क्या हैं, हमें इस बैटरी को और इस बैटरी को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका यहाँ से हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है और जाके इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। और इसके सारे जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, इसके वोल्टेज मेजरमेंट के पॉजिटिव से connect है। तो जो इसके सारे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हैं वो किससे कनेक्ट है, वोल्टेज के, एक मिनट यार, तो अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब दूसरा क्या है कि ये पॉजिटिव तो आपने सारे कनेक्ट कर दिए वोल्टेज मेजरमेंट के पॉजिटिव से। अब इसका नेगेटिव जो बचा ये आपके इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, और इसके जो पॉजिटिव और जो इसका नेगेटिव, ये दोनों आपस में सेम, जैसे ये कनेक्ट कनेक्ट है ऐसे ये दोनों आपस में कनेक्ट है सेम वे पे। ठीक है, पहले आप इसको यहाँ से इसको कनेक्ट कर लो। ठीक है, एक मिनट। हाँ देखो, सेकंड का बाकी है ना सर। इसका ये नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर दिया ना।
अच्छा, इसका पॉजिटिव बाकी है, पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा ना सर। ये पॉजिटिव, इसका जो है नेगेटिव में जाएगा, ये बाकी है। हाँ। अच्छा अच्छा यार, ये तो फिर जो है कोई हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इसका पॉजिटिव बाकी, वो हटा ही देता हूँ, रुक जाओ। ओके, थोड़ा मैं अरेंज कर देता हूँ। ओके, अब देखो इसमें मेन जो चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपको जो ड्राइव साइकिल सोर्स है, आप जो भी ड्राइव साइकिल सोर्स ले रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है आपसे। ठीक है, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप ड्राइव साइकिल सोर्स आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो लिमिटेड दिए हुए हैं आपके पास, वाइड थ्रॉटल दिया है, ठीक है, या वर्क स्पेस वेरिएबल या FTP 75 दिया है। तो बेहतर चीज क्या है कि आप अपनी ही ड्राइविंग साइकिल बनाओ, चाहे IDC बना लो, UDDC बना लो। ठीक है, बनाने के बाद अब वो क्या है, वो एक्सेल शीट में बना सकते हो आप। ठीक है, एक साथ टाइम रहेगा, एक साइड वेलोसिटी रहेगी, वो आप बना सकते हो। ठीक है, मेरे पास है ऑलरेडी, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो अब मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे कि ठीक है कौन सी फाइल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एक ड्राइव साइकिल ले रहा हूँ। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना। अब क्या है कि अब आप आपने कर दिया, अब आपको पता नहीं चल रहा यार कि मैंने इसी वाले फोल्डर पर डाली थी, मिल नहीं रही। लेकिन वो क्या है, डॉट एक्सेल फाइल है, तो आप डॉट एक्सेल फाइल सिलेक्ट, जैसे ही सिलेक्ट करो तो इसमें आ जाएगा UDDC करंट साइकिल। ठीक है, सिलेक्ट करके इसको मैंने अपलोड कर दी। ओके, ठीक है, अब ये इसमें जो ड्राइव साइकिल है वो ऑलरेडी लोड हो गई। बट एक चीज और ध्यान रखनी है कि कितने टाइम पीरियड की है, 1369 सेकेंड। तो आपका स्टॉप टाइम कितना होगा, 1369। 1369। ठीक है, क्योंकि इसी ड्राइविंग साइकिल का अकॉर्डिंग मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो उसको रन कराते हैं, देखते हैं अगर कनेक्शंस कुछ रॉन्ग होंगे तो। कनेक्शन बाकी है। अच्छा, पावर GUI ब्लॉक नहीं है, एक चीज। ये भी, और पहले वाला जो है ना उसका कनेक्शन करना पड़ेगा ना, माइनस माइनस माइनस। पावर GUI ब्लॉक, ठीक है, एक मिनट यार। अच्छा, इसका नेगेटिव मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ कनेक्ट होना चाहिए था ये। ठीक है, हैंग कर रहा है यार, एक मिनट हो। आपको ये कनेक्शन समझ में आए ना, ये क्या चीज किस तरीके से बनना है, कट यस करके सर। वापस ओपन करता हूँ। तो ये ओपन इसी में समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने वही सेम मैं चीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने क्या है, ड्राइव साइकिल सिलेक्ट करनी है। ठीक है, फाइल सिलेक्ट करनी है यहाँ पे कि आपको, अगर आपके पास कोई अवेलेबल साइकिल, आप इनमें से अगर आपने कोई साइकिल ली है अपने पावर ट्रेन में, ठीक है, सपोज करो कि आपने FTP 75 ली है ड्राइव ट्रेन सेट करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अदरवाइज क्या करना है कि एक और ऑप्शन होता है वर्क स्पेस वेरिएबल का। वर्क स्पेस वेरिएबल का मतलब ये है कि आप वर्क स्पेस पे ही आप एक साइकिल सेव कर लो।
इंपोर्ट कर लो फाइल को, ठीक है। दूसरा है कि आप कोई एक्सेल फाइल बनाओ और उसको इंपोर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिलेक्टेड ऑलरेडी, इसलिए मैं हटा रहा हूँ उसको, ठीक है। अब आप क्या करो, सबसे पहले जाओ सिलेक्ट पे, फिर यहाँ पे जाओ, जो फॉर्मेट ले रहे हो वही फॉर्मेट सिलेक्ट करो और अप्लाई करो। इसमें सिलेक्ट करो जो यूडीडीसी करंट साइकिल है मेरे पास, तो मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप इसको देख भी सकते हो कि आपका ये प्लॉट है, ये किस तरीके से है। नाउ यू कैन सी हियर, सो दिस वन इज योर velocity versus time graph, okay, which is in UDDC current cycle mode, okay। ये अप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। सारे कनेक्शंस वैसे ही हैं जैसे उसमें थे। आपने ड्राइविंग साइकिल सोर्स लिया है 1369 सेकंड्स का, आपको स्टॉप टाइम 1369 का ही रखना है। रन कराओ, ठीक है। उतने टाइम पीरियड के लिए रन कर गया। अभी इसमें जो टोटल वोल्टेज आ रहा है इस बैटरी पैक से आ रहा है, वो आ रहा है 12.64। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, कितना था, 4.2। जो उसका वोल्टेज कितना है, हाँ 4.2 वोल्ट था। अगर फुली चार्ज वोल्टेज, अगर आपने वन सेल का आप देखोगे यहाँ पे, जो मैंने आपको डिस्चार्ज कैरेक्टरिस्टिक दिखाई थी, यहाँ पे कितना लिखा है चार्ज, 4.2 वोल्ट, करेक्ट। 4.2 So if you will calculate the total voltage, so how many cells are there? 4.2 and 4s. So anyone can just calculate this 4.2 into जितनी आपकी सीरीज में सेल हैं, तो कितना वोल्टेज आएगा टोटल? 13.6. 12.6. Okay, so it is coming like 12.64. So this is like this connections and everything, your battery pack is ready, which is giving the voltage of 12.64 volt. Okay, okay. Now tell, if I want a 16.8 volt, then then what I will do? सीरीज में और एक कनेक्ट करना पड़ेगा ना सर? एक और कनेक्ट करना पड़ेगा, इसमें और एक है ना। कनेक्ट करना पड़ेगा, और अभी एक आपको समझ में आ गया ना कि मतलब मेरा मोटिव ये है कि वट एवर द रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर powertrain, or whatever, like you are doing the calculation for your e-bike, whatever you are designing in Pune, okay. So for that, first you will calculate the power, like already you are having like 700 watt motors, right? Yes. Okay, so on 700 watt motors you will calculate, you have to do some reverse calculation to calculate the battery pack according to the range, right? So you will select the range of that bike, most probably it's 80 kilometer or 60 kilometer of the range. So according to the range, you will calculate all the things and finalize your battery pack capacity. Okay. So for that range, if you have calculated your battery pack capacity, so suppose it will come like 20 Ah. It will come like that only. Okay, 20 Ah, or somewhat it can be 38 or 30 Ah, not more than that. So when you have this 20 Ah battery, then you can calculate the things according to the battery. So whatever the battery pack voltage, you will, like suppose you are taking 48 volt motor. I think Kuldeep is 48 volt your motor. Yes, sir. So if it is a 48 volt motor, then how much voltage you will take from the battery? फिर से बोलिए सर, क्या बोला आप? How much voltage you will take from the battery to run your motor if your motor is 48 volt? Obviously it's 48 volt, definitely you will take the 48 48 volt from the. Yes. So that means now you have decided the voltage of the battery 48 volt, correct? Yes. And according to the range, your capacity will change. Okay. Yes. So definitely you got to know that my capacity is this. So this many connections I have to do in series to get the 48 volt, and
this many connections I have to do in parallel to get the 20 Ah of the battery pack capacity. Am I right? Yes. Okay. So what when you will calculate all these things, so do this with your driving cycle. I think Vimal sir will provide you this IDC cycle or something. And if you are having any other cycle, you can test on that also. But for this instant, we are taking the UDDC cycle. Okay. Now see the SOC and the so how this SOC is changing. See, this is initially what I have taken 100%. 100%. Now this is somewhat how much we can check. So the minimum is 9.77 into 10 to the power 1. That means 97.7%. Right? Yes, sir. Okay. So the minimum value is a 9.779 means 97.7% SOC. It has been taken in how much seconds? 1369 seconds. 6 It is discharging in this rate. Okay. So according to the driving cycle, your current should be in the form of driving cycle or not. माय क्वेश्चन है कि अगर आपकी ड्राइविंग साइकिल का कुछ पैटर्न है तो जो करंट का पैटर्न है ठीक है वो कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए या मैं कह सकता हूँ कि वोल्टेज का जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग या नहीं Yes, sir. आपको फिर से Accordingly, ड्राइविंग साइकिल एक बार दिखा रहा हूँ तो यार ये मैटलैब देखो एक बार ड्राइविंग साइकिल मुझे बताओ एक बार नोटिस करके ये जो ड्राइविंग साइकिल है फॉर इंस्टेंस आई एम टेकिंग दिस 400 so in 400 you will see the two spikes are coming down correct Yes. now just go here and check at 400 instant okay so most probably these Correct. so that means whenever the powertrain you are designing the powertrain so whatever the reference velocity you have taken what is the reference velocity which is taken from the drive cycle source so that should follow by that your powertrain you will get the feedback velocity when I will tell you how to design the powertrain then you will get to know if you can just by seeing only one graph you can tell that this powertrain is correct or not just by seeing only one graph if that is not correct you can say that your powertrain is not correct this is not working you will get the graph definitely you will get the graph but and you will not get anything that is correct or not this is also a thing you can only catch the things you can only identify the mistakes when you know everything regarding the SOC level and the current the voltage these things if you know personally very clearly then only you can identify just by seeing the SOC or just by seeing the current value or the voltage value in powertrain but this is a good way to just go through the velocity reference velocity and the feedback velocity check the uh, plot if it is not similar to the reference velocity it's correct it's not correct so here if you will see your SOC is continuously decreasing that means it is taking the power from the battery okay and here if you will see the current velocity current waveform current plot so it is following your drive cycle source it means whenever your whenever you are just accelerating the vehicle that means at that time your battery is discharging fastly right yes, sir. okay so whenever your vehicle is moving continuously you are not accelerating not deaccelerating so that time the battery will not means discharge or the battery current will be the constant or zero we can say that right Yes, sir. so according to that you can also calculate the power also if you are having the voltage and the current correct Yes. okay so in that case you can calculate the power that how much power for an instant is taken from the battery okay
I think there is no block for this power measurement, power sensor. It is given but in Simulink. देखो जैसे आपका है ना, यहाँ पे दिया है पीएमएसएम मोटर टॉर्क एस्टिमेटर। इससे देखो अब आप क्या है, आप उसकी डी एक्सिस की करंट प्रोवाइड कर दो, उसको क्यू एक्सिस की करंट प्रोवाइड कर दो, और उसका एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो, तो ये आपको जो रिक्वायर्ड टॉर्क है जो वो बता देगा, और आपकी पावर। ये सारे क्या है, मोटर कंट्रोल ब्लॉक्स है। ये इसलिए आप थोड़ा चेक करते रहो करो इन सारी चीजों को। ये है 3 फेज के लिए है। सिंगल ये सिंगल फेज के लिए, बट ये डीसी पावर मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। आप अलग से यहाँ पे क्या कर सकते हो, कांस्टेंट ब्लॉक लगा के एम्पियर ले लो और वोल्टेज लेके मल्टीप्लाई करके उनको कर सकते हो। ठीक, बेसिक फंक्शन ये है। तो अब इससे आपको पता चल रहा है कि अगर ठीक है, अगर आप वोल्टेज भी अगर देखें, सो दिस वन इज योर वोल्टेज प्रोफाइल एंड okay, so in every instance, if you will see, your voltage is not just like 12.7, 12.64 volt. Okay. Why? Because it depends on the reference velocity graph. When you are accelerating, so this will be spike upside, and when you are deaccelerating, it will go up to downside. Okay. So this is the way we can simulate this lithium ion battery. Okay, you can also simulate some other batteries also if you want to change the battery. Okay, so you can also just select the nickel cadmium nickel metal hydride, which one you want. Okay. ओके, मेरे में एक्चुअली मैंने पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की है ना, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम। जैसे मेरे पास ये टूल नहीं है अभी, ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स। सो ये बोल रहा है मेरे को कि आपको प्री सेट बैटरी ही लेनी पड़ेगी जो हमारे पास अवेलेबल है। ओके, टू सिमुलेट द, एक बार मैं चेक करता हूँ। देखो उसमें नहीं आएगा वो। तो उसमें आप अगर टेम्परेचर भी आप सिमुलेट करके चेक करना चाहते हो कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर फॉर दिस ड्राइविंग साइकिल ऑफ माय दिस, देन यू कैन आल्सो डू दैट। But initially you have to define the cell temperature. It's 20 degree already it is taking, and but this measurement course is not taking. Mhm. Okay, fine. So according to that you can design this, but I will not suggest to design the same thing because they are okay. So whatever the combination you are having here, you design for 3S and 4P. I'm mentioning here. I will just now I will share this. Okay. So you design for this and comment on the SOC and the current and the voltage. That what will be the current, what will be the voltage of that combination. करेक्ट? इसमें कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। अभिषेक है अवेलेबल अभी? यस सर।
हाँ चलो। अभिषेक, चलो जी, यस ये सर। मैं डिस्कस करूंगा उसमें जब हम अपना सेशन करेंगे ना, जिसमें फर्स्ट सेशन में मैं प्रेजेंटेशन और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह चेक करूंगा सबकी। उस टाइम पे ही हाँ। मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या चीजें चेंजेस करने हैं आपको और क्या इसमें जरूरत है, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस हैं इन सब चीज़ों में। फॉर्मेट आपने फॉलो किया है, बट फॉर्मेट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिस कर दी हैं कि कहीं फॉर्मेट कुछ है, कहीं फॉर्मेट कुछ है। एक जैसा होना चाहिए ना, जैसे मान लो अगर ये कितने का है, ये 14 है, तो आप इसके सारे अंदर के कंटेंट 14 रखो। ये कितना है, ये 16 है, तो आप 16 रखो। अगर 12 ले रहे हो तो फिर आप 12 रखो सारे कंटेंट्स। कभी भी जब ये चीज़ मेंशन करते हैं ना, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, जब ये आप ये इस तरह से लिखते हैं ना, तो आप इसको ना, आप ब्लॉक के फॉर्म में मत लिखो, ठीक है। आप किसी पेपर को फॉलो कर सकते हो कि किस तरीके से स्टैंडर्ड ले सकते हो। आपकी IEEE फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो अगर आप, ठीक है, IEEE फॉर्मेट, तो आप उसी तरीके से लिखो। उसमें ब्लॉक आप हटा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे सीधे लिखो, ठीक है। और जो भी फिगर नंबर है आपका, मान लो फिगर 8। 8, ठीक है। आपको उस फिगर पे डिस्क्रिप्शन लिखना है हमेशा। ये क्या है, अभी मुझे कैसे पता चलेगा। अब ऐसा मत कह देना कि लिखा है सर ऊपर तो इसलिए पता चल जाएगा। ठीक है। सब हाँ एक, प्रदीप सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ विवेक हाँ सर, इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें रेफरेंस पे ऐड करने का ऑप्शन आता है, फिगर का। फिगर ऐड भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बट ठीक है, अभी हम लोग इतना डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें क्या है, फिर बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना। जोटेरो यूज करना, ये सारी चीजें। नहीं नहीं, वो बट मैं डायरेक्ट से वर्ड से ही हो जाता है। उसमें हाँ, रेफरेंस में वर्ड से भी इंसर्ट हो करके जाता है। वहाँ आप ऐड फिगर ऐड कर दोगे, आपका टेबल ऑफ फिगर बन जाएगा। टेबल ऑफ क्या कहते हैं, लिस्ट हाँ, ऑफ तो जब मैं फिगर बन सेशन जाएगी। कराऊंगा ना, तो एक एक रेडी रखना है ऐसा फॉर्मेट जिसमें ये बता देना है, ठीक है, कि सर किस तरीके से एक्चुअली होगा। मेरे रिपोर्ट में मैंने कर रखा है सर। नहीं नहीं, वो करके बताना है तुमको। तुमने बताया अभी, तो तुम बताना है इसमें, ठीक है। ठीक है। चलो ओके, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ कि हम लोग क्या है कि नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग थोड़ा सा रीड करके आना और देख के आना उसके अकॉर्डिंग कि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या करेंगे। फर्स्ट तो आपको क्या करना है, इसका 3S4P मॉडल बनाना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद हम कौन सा मैनुअल करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या करा दिया। सर बेसिकली आप ना टोटल लिस्ट बता दीजिए क्या क्या आप करवाने वाले हैं MATLAB में प्रोजेक्ट्स।
सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं आ रही। सर क्लास फिनिश हो हाँ, गई? ये आवाज आ रही है यार मेरी? वो नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया है। नहीं सर, नहीं आ रही आ थी। रही है सर। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट वाले में मैं भी बता देता हूँ फिर से, मुझे लगता है वो स्किप हो गया। तो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट, डिजाइन एन ईवी यूजिंग क्यूएसएस टूल बॉक्स, ठीक है, ये कर सकते हैं, या फिर सोलर पीवी बेस्ड चार्जर। यूएसएस टूल बेस्ट सर। यूएसएस वाला ले लो सर। ठीक है, तो क्यूएसएस टूल बॉक्स में आपको करा देता हूँ, उसमें पूरा सोलर वाला लास्ट कैसे में, डिजाइन। सोलर वाला लास्ट में रखना। हाँ हाँ, सोलर वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बट उससे आपको एक आइडिया सबसे अच्छा पता है क्या लगेगा, उसका उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ना उसमें सोलर के कॉन्सेप्ट भी कुछ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्लियर हो जाएगा कि सोलर बेस्ड, चाहे वो हम कह रहे हैं उसको चार्जर, बट आप जो सोलर एनर्जी हम जनरेट करते हैं उसको कैसे हम आउटपुट तक कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारा आपको पता चलेगा। नाम है उसका ईवी चार्जर, बट वो है एक्चुअली में पावर फ्लो। इट्स मॉडल ऑफ, we can say that the solar power based energy harvesting, that we can say. If I will merge the solar and wind and batteries, these three things, and I will take the power from these three, so it will be like a microgrid. Okay, so you can also design the microgrid. This is also a good option, but first you should understand this solar. So in this solar PV we will discuss later, because in between, uh, if I will tell, then you have to go for the solar. Before I will start and last, so that you can get the solar things, because I will give you some of the assignments to complete these things regarding the solar, that what is the solar irradiance, okay, what is the azimuthal angle, zenith angle, these things, what is the MPPT. Okay, you have to go through the this MPPT algorithm also. How we implement the MPPT algorithm? What is the MPPT algorithm? These things first you should understand. Then only you can go for this PV charge, the solar PV charge. Hello, Yes, sir. Can you tell all the names of all the projects that are remaining? this one I already told. Now till now you have completed 6. Only 5 is remaining. Yes, sir. So, Okay, tell the names if you can. I think yeah, this one is 6 today. What we have completed, है ना? Yes, sir. तो अभी यस 7th सर। मैं आपको कराऊंगा डिजाइन एंड ईवी यूजिंग क्यूएसएस टूल बॉक्स, ठीक है, 7th हो गया। Okay. Okay. 8वां मैं कराऊंगा सोलर, सोलर नहीं, ये पावर ट्रेन मॉडलिंग कर सकते हैं 8वां, क्योंकि मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है पावर ट्रेन में। मॉडलिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई डाउट आएगा, Okay. ठीक है, ये 8 हो जाएगा। 9वां मैं करा दूंगा आपको सोलर पीवी बेस्ड चार्जर। 2 प्रोजेक्ट बचेंगे, वो 2 प्रोजेक्ट में हम बीएमएस मॉडलिंग कर सकते हैं कि सेल बैलेंसिंग कैसे करना है, ओके, एंड प्रोटेक्शन, बैटरी प्रोटेक्शन, Okay, sir. ये कंप्लीट करेंगे। Okay. इस तरीके से कंप्लीट करेंगे तो आपके 11 प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, Okay. ठीक है, Yes. ओके। तो उसमें सेल बैलेंसिंग कर सकते हैं, सेल बैलेंसिंग वाला प्रोजेक्ट। हाँ देखो, मैं आपको ना, आप ये तो हमने क्या किया, ये बैटरी मॉडलिंग जो की, ये एक बैटरी मॉडलिंग थी। ये कह सकते हो आप कि ये आपका बैटरी पैक मॉडल था, बट मैं आपको एक बैटरी में एक और मॉडलिंग कराना चाह रहा हूँ जो थर्मल बेस्ड होगी, थर्मल बैटरी मॉडल। ओके। उस थर्मल बैटरी मॉडल में देखो, मैं एक चीज दिखा देता हूँ अगर मेरे पास। थर्मल बैटरी मॉडल में आप क्या कर सकते हो कि आप उसमें, एक मिनट है,
सो इन दैट थर्मल बैटरी मॉडल आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, आप सेल का टेम्परेचर वगैरह है, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और उसमें आपका जो पैक का वोल्टेज है, पैक का करंट है, क्योंकि वो यूज होगा आपका जब मैं आपको सेल बैलेंसिंग कराऊंगा ना, उस टाइम पीरियड पे चाहो तो वो करा सकता हूँ या फिर मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट तो आप जो मैंने अभी बैटरी मॉडलिंग कराया ना, उसमें भी आप टेम्परेचर इफेक्ट देख ही सकते हो। ठीक है, मैं डिसाइड कर लूंगा क्या है, बट मैंने अभी आपको जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने बता दिए आपको। ठीक है, क्या क्या करेंगे। सर एक लेकिन ना लास्ट में जरूर अपना पूरा बीएमएस मॉडलिंग जरूर करा दीजिएगा सर। ठीक है, वो हम करा देंगे। ओके। ठीक है, ठीक है, फिर आज का क्लास अभी एंड करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ, सर वो प्रेजेंटेशन में रिपोर्ट और पीपीटी दोनों बनानी है ना? मतलब जो प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है उसका, उसमें रिपोर्ट और पीपीटी दोनों बनानी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा इतना कंफ्यूजन क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला रिपोर्ट बनानी है सिर्फ और सिर्फ जो हम मैटलैब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन में आपको टॉपिक दे दिया, उस पे आप प्रेजेंटेशन बना लो, इसमें क्या कंफ्यूजन क्यों है इतना। ओके ओके सर, मुझे लगा दोनों। नहीं, उसके लिए रिपोर्ट नहीं बनानी, रिपोर्ट सिर्फ बनानी है आपके जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। वो आपको आउटकम तो पता चले कि आपने प्रोजेक्ट किया है, तो आप लिख रहे हो क्या है, क्या थ्योरी है उसकी, क्या उसका एडवांटेज है, वो सारी चीजें कम से कम एटलीस्ट लिखोगे तो समझ में तो आएगा। अभी मैं लास्ट क्लास में मैंने पूछा इतना सब कुछ, मुझे कुछ मिला नहीं। सब ऐसा लग रहा है सब गायब हो गए। बीएमएस के फंक्शन पूछ रहा हूँ, वो नहीं डिफाइन हो पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ बैटरी पूछ रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है। इसीलिए ये प्रेजेंटेशन करानी इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, फिर आप लोगों को लगता है कि भाई प्लेसमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। हम प्लेसमेंट के लिए आज गए हैं हीरो में। बट आप रेडी हो, दे पाओगे आप कल, अगर मैं आपका प्रेजेंट, अगर आपका प्लेसमेंट के लिए, अगर आपको कल या अगले वीक तक मैं आपको अगर बोल दूं कि ठीक है आपका भाई प्लेसमेंट सेल में हमने भेज दिए हैं रिज्यूमे, आप दे लोगे इंटरव्यू इस तरीके से जिस तरीके से अभी चल रहा है। आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। मैं आपको एक इनडायरेक्टली आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। ठीक है, ओके मैसेज भी आया था ना सर का शायद, वो फॉर्म फिलअप एक मिनट करने एक के लिए। मिनट। कुलदीप रेडी रहो। हेलो। यस। हाँ ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें रेडी कर लो। ये ऐसा नहीं कि बस खाना सारा कंप्लीट हो गया तो आपने सब बाइंड अप करके रख दिया। हर एक चीज को वापस से जाके रिवाइज कर लो। ठीक है, बहुत छोटी चीजें, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही प्रॉब्लम करता है। छोटी सी चीज पूछ दी जाती है, भाई ठीक है हम लेड एसिड यूज कर रहे हैं, क्या इश्यू आएगा। तो आपको रेडी रहना है। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं उसी टाइम पे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो टाइम नहीं होता इतना सोचने का। गो थ्रू करो, सारे नोट्स रीड करो। ठीक है, टर्मिनोलॉजी याद करो, क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करना है उस चीज में थोड़ा एक्सपर्टीज गेन करो, फिर आप जो इंटरव्यू के लिए जाओ। ठीक है, मैं आपको ये असाइनमेंट यस सर। दूंगा आज, और आपको ये मैनुअल भी शेयर कर दूंगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कर। ठीक है। ओके। ओके सर। ओके, तो ट्राई ठीक साइकिल है। भी शायद शेयर कर देना हाँ, है वो ना। मैं उसी में अटैच करके भेज दूंगा। ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।